Good morning, children. Today we are going to start with our chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. Please open your NCERT textbooks on page number 19. Now, children, we have already studied the structure of a flower in 10th standard. The highest order in the plant kingdom, which are called as the angiosperms, they have the reproductive unit which is called as a flower. We have studied the different parts of a flower in our previous class. We have studied regarding the reproductive structures as well as the non-reproductive structures of the flower. Now let's discuss the external morphology and the method of sexual reproduction in flowering plants in more detail. Now, flower, a fascinating organ of angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural values. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो हम हमेशा हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं. खुशी के मौके पे भी करते हैं, गम के मौके पे भी करते हैं. किसी को अगर हमें गिफ्ट करना हो तो हम ऐसा मानते हैं कि फ्लावर्स आर द बेस्ट गिफ्ट्स, राइट. टर्न टू पेज नंबर 20. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट phases during the reproduction in the angiosperms. Now, figure 2.1, a diagrammatic representation of LS of a flower is given to you, right? We can see the flowers has the different parts like petals, sepals, anthers and stigma, right? तो फ्लावर के 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं. 2 तो होती हैं एसेसरी वर्ल्स और 2 होती हैं नेसेसरी वर्ल्स. एसेसरी वर्ल्स के अंदर हम फ्लावर की किसको लेते हैं, पेटल्स को लेते हैं और फ्लावर्स के सेपल्स को लेते हैं. और नेसेसरी जो वर्ल्स हैं फ्लावर की, जो नेसेसरी पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एंथर्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्टिग्मा, राइट. This basic structure of the flower we have already discussed in our 10th class in the reproduction unit. Now we are going to directly start with the sexual reproduction in angiosperms, that is in a flower. So we will discuss the first part, pre-fertilization structure and events. Pre-fertilization का मतलब है fertilization से पहले. बच्चों, हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग और करना चाहूँगी. फर्टिलाइजेशन क्या है, द यूनिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिजल्टिंग इनटू अ फर्टिलाइज स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द ज़ाइगोट. इफ़ यू रिमेंबर, हमने 10th के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ में इस बारे में हमने पढ़ा था. उसी चीज़ को हम बहुत एलेबोरेट तरीके से, डिटेल स्ट्रक्चर तरीके से अब हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारी इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस फ्लावर के अंदर आते हैं, क्या क्या चेंजेस एक प्लांट अपने अंदर करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. फूल के पेड़ पे आने से पहले, बहुत पहले ये डिसाइड हो जाता है कि उस पार्ट में या उस प्लांट के अंदर फ्लावर की पोजीशन कहाँ होगी या कौन सा हिस्सा जो है वो फ्लावर को डेवलप करेगा. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. देखिए, स्टेम के ऊपर अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं. जो प्राइमरी, जो स्केली लीव्स होती हैं उन्हें हम प्राइमोडियम कहते हैं. अब ये जो बंच ऑफ स्केली लीव्स है या वेरी यंग लीव्स है, इनमें से कौन सा बर्ड जो है वो फ्लावर बनाएगा और कौन सा जो बर्ड है वो लीव्स बनाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑल्सो विद द हार्मोनल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन अ प्लांट, राइट. Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flowers. Inflorescence हमने पढ़ा है, हमने 2 मेजर इन्फ्लोरेंसेस हमारे 11th पे पढ़े थे, रेसिमोस एंड साइमोस.
Good morning, children. Now we will continue with the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Today we will start with the structure of stamen, which is more precisely called as microsporangium, which result into the formation of the basic structures which are called as the pollen grains or the male gametes. Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament. ये क्या है साहब? स्टेमन का फिलामेंट है, लॉन्ग स्लेंडर है. ऊपर आप देख सकते हैं एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एंथरलोब्स. बाइलोब इसलिए हैं क्योंकि दो लोब्स हैं और दोनों ही बीच में किससे अलग हो रहे हैं? थीका से, या एक पर्टिकुलर लेयर से दोनों लोब्स अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने इनको बाइलोब एंथर्स कहा. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. Proximal का मतलब है ये वाला जो निचला वाला सिरा जो होता है फिलामेंट का, ये किससे जुड़ा हुआ होता है साहब? या तो फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है या फिर फूलों की पत्तियों से या पेटल से जुड़ा हुआ होता है. The number and length of the stamens are variably in flowers of different species. हर फ्लावर के अंदर, हर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर लेंथ भी फिलामेंट की अलग अलग होती है और नंबर ऑफ स्टेमन्स जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. अगर आप अलग अलग स्पीशीज़ के 10 फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके आप डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे उन एंथरलोब्स के अगर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो यू वुड फाइंड दैट ऑल द एंथर्स आर हैविंग द डिफरेंट शेप एंड साइज एंड द लेंथ ऑफ दीज एंथर्स वुड also be varying or may be different. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. कुछ एंथर्स जो होते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर पेटल से जुड़े हुए होंगे, किसी में वो बिल्कुल नीचे में बेस तक थैलेमस से जुड़े हुए होंगे, तो अटैचमेंट भी हर एक के अंदर अलग अलग होगा और हर एंथर का शेप और साइज़ भी अलग अलग फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होगा. अब साथ क्या होता है देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड. एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो कैसा होता है साहब? बाइलोब्ड होता है. दो लोब्स होते हैं उसके. ईच लोब है हैविंग टू थीका. हर लोब के बीच में क्या होता है साहब? ये दो थीका होती हैं, इस तरह की दो लाइंस होती हैं और दो लाइंस, एक एंथर के अंदर एक थीका है, दूसरे के अंदर एक थीका है, तो टोटल हम देख सकते हैं कि वो एक एंथर जो है वो कितने टेट्राड में कन्वर्ट होगा. अगर आप उसका डिसेक्शन करेंगे, आप उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर 4 लोब्स आपको इस तरह से अलग अलग दिखाई देंगे. ऐसे एंथर्स जिनके अंदर 2 थीका होती हैं उन्हें हम डाइथिकस एंथर्स कहते हैं. मोनोथिकस एंथर्स वो होते हैं जिसमें कोई भी थीका नहीं होती है और पूरा का पूरा एंथर जो होता है वो एक ही लोब का बना हुआ होता है. ठीक है. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है साहब और ये ग्रूव जो है ये पूरी एंथर के टॉप से लेके बॉटम तक ये पूरी जो लाइन है ये क्या करती है? दोनों थीकास को अलग अलग कर देती है. ये ग्रूव, ये बीच का पिंक कलर देख रहे हो ना, इसको हम ग्रूव कहेंगे और ये बाहर की जो ब्लैक लाइंस है इनको हम थीका कहेंगे. इनको अलग अलग करने का काम करता है. सेपरेटिंग द थीका. Let us understand the various types of tissues and their organizations in the transverse section of an anther, figure 2.3a, that is on the next page. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. Bilobed, bilobed का मतलब है ये 2 लोब हो गए. एक एंथर के 2 लोब हो गए और ये दूसरा वाला एंथर लोब है, इसके भी साथ 2 लोब हो गए. तो टोटल कितने लोब्स हो गए? 1 2 3 4 टेट्राड ऑफ स्पोरेंजिया हो गया. The anther is a 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia, 1, 2, 3 and 4, located at the corners in the 2 lobes. The microsporangia develop further and become pollen sacs. Microsporangia क्या होते हैं? ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं साहब? पोलन सैक बना लेते हैं, पोलन का बैग बना लेते हैं. उस बैग के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. और ये जो आप माइक्रोस्पोरेंजिया देखेंगे, पोलन सैक देखेंगे, ये